Hi, I am Manvi and today I'll be teaching you sexual reproduction in flowering plants. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about flower के different parts and उसके functions. Then we'll study about its fertilization. उसके pre-fertilization events क्या होते हैं, fertilization कैसे होती है and post-fertilization events कैसे होते हैं. Like fertilization is the fusion of male and female gametes to form a zygote. So zygote के बनने से पहले male gamete and female gamete का fuse होना is important. लेकिन उनके fuse होने से पहले उनका बनना भी important है. So pre-fertilization events में male gametophyte and female gametophyte से male and female gametes produce होते हैं. And then gametes के formation होने के बाद pollination होता है. Pollination is the transfer of pollen grain to stigma, and then we'll study about the pollen pistil interaction. So this is the whole outline of the chapter, and हम start करेंगे flower से. Flower. So what is a flower? For common people, flower has only ornamental values. वो उसको use करते हैं in temples and to present anyone. So common people के लिए flowers are just used for ornamental purposes. लेकिन to a biologist, flower is a sexual reproductive organism. For people, flower is of cultural, social, ethical, and ornamental value. But for a biologist, it is embryological and morphological marvel and site of sexual reproduction. So flower for people has different values, and for a biologist it is a site of sexual reproduction. And its growing and marketing is a business for some people, and it is called as horticulture. Flowers के production और उसकी marketing करने को horticulture कहते हैं, and it is a business for some people. So this was a little information about flower, that what is a flower and its importance. अब हम पढ़ेंगे about parts of a flower. फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम and gynoecium. Okay, I'll tell you about them in detail one by one. First, let me show you how a flower looks like. You must have seen a flower.
So this is how a flower looks like. Parts of a flower. ये हैं इसकी sepals, जो कि they are green in color and they are called as calyx. These are the petals, which we call as corolla, and this you can see, these 4, 1, 2, 3, 4, these are stamens with filament and anther. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains. And this whole, you can see the structure. This is a carpel or we can say pistil. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है प्लांट का एंड वी कॉल इट एज गाइनोशियम. स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं एंड पेटल्स को कोरोला एंड सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं. सो ये है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स एंड यू कैन सी स्टेमन की 2 पार्ट्स हैं. दिस इज फिलामेंट अलोंग इन सिलेंडर एंड दिस बाइलोब स्ट्रक्चर इज एंथर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस इज द कार्पेल. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. कैलिक्स, इसको हम सेपल्स कहते हैं. इसका हर एक इंडिविजुअल पार्ट को सेपल कहा जाता है. दिस इज द फर्स्ट whole of floral appendage. Okay. Number 3, they are green in color. ये कलर में ग्रीन होती हैं एंड मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर. कुछ फ्लावर्स के अंदर ये कलरफुल होती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटलॉइड. दे आर ग्रीन इन कलर. इन सम दे आर कलर्ड एंड कॉल्ड एज पेटलॉइड. एंड ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती है. इसका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं आता है. नॉन रिप्रोडक्टिव, दैट इज दे आर स्टेराइल. एंड इनका एक ही फंक्शन होता है. जब फ्लावर क्लोज्ड होता है तो सेपल से ही कवर्ड होता है वो. यू कैन सी जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें सबसे पहले बर्ड्स आते हैं. सो बर्ड्स आर ग्रीन इन कलर. सो जो बर्ड्स की जो आउटर कवरिंग होती है, दैट ग्रीन कलर पार्ट, उसको ही सेपल कहते हैं. देन जब फ्लावर ओपन होता है तो किसी किसी फ्लावर के अंदर सेपल्स फॉल ऑफ हो जाती हैं, बट किसी किसी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. सो दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये बड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज द फ्यूचर फ्लावर. सेकेंड इज कोरोला. Second, floral whorl. Arises inner to calyx. पहले बाहर कैलिक्स होता है, ये कैलिक्स के अंदर वाली वोल होती है. Colored to अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं. जो फ्लावर्स का बेसिकली कलर होता है वो पेटल्स की वजह से ही होता है. एज यू कैन सी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, कलर्ड फ्लावर्स. सो
फ्लावर्स की पेटल्स ही कलर्ड होती हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। दे आर ऑल्सो स्टेराइल, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, बट येस दे हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। सो ये थी हमारी आउटर दो फ्लोरल वॉल्स, कैलिक्स एंड कोरोला। इसकी इंडिविजुअल अपेंडेज को वी से पेटल, एज आई टोल्ड यू हेयर। सो दीज आर द टू आउटर वॉल्स। ये दोनों स्टेराइल होती हैं, फंक्शन में इनका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता है। जो सेपल्स होती हैं वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एंड जो कोरोला होती है दैट गिव्स कलर टू द फ्लावर, एंड उसी की वजह से insects are attracted towards the flower and they help in pollination. So ये functions है calyx and corolla, that is of petals and sepals. अब हम पढ़ेंगे अबाउट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द थर्ड फ्लोरल वॉल ईच इंडिविजुअल अपेंडेज को, इसकी हर एक इंडिविजुअल अपेंडेज को वी कॉल एज स्टेमन। दे आर नॉट स्टेराइल, ये स्टेराइल नहीं होती हैं। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड वी कॉल इट फर्टाइल। इट फॉर्म्स pollen grains, इसके अंदर आगे जाके pollen grains बनते हैं जब ये fully developed हो जाता है। and structure, its structure, let me show you how a stamen looks like. See, this is a stamen. स्टेमिन के दो पार्ट्स होते हैं, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट जो होती है वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है, एंड एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है, दैट इज इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हर एक लोब के अंदर दो ठेका होते हैं। तो दैट मीन्स इन टोटल इसके अंदर चार लोब्स हुए, दैट इज नहीं, वी कैन नॉट कॉल इट लोब, लोब्स तो दो ही हैं, चार ठेका प्रेजेंट हैं इन टोटल। सो वी ऑल्सो कॉल इट डायथेकस, क्योंकि एक लोब के अंदर दो ठेका प्रेजेंट हैं। फिलामेंट, इट इज द लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, एंड एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक जंक्शन से, उस जंक्शन को हम कनेक्टिव कहते हैं। सो दिस इज द एंथर, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट गायनोशियम। गायनोशियम इज द फोर्थ फ्लोरल अपेंडेज राइजेज इन सेंटर, ये यूजुअली सेंटर में होती है, एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है. इट प्रोड्यूसेस एग्स. फॉर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. जायगोट के फॉर्मेशन के लिए ये एग का प्रोडक्शन करती है इनसाइड ओव्यूल. सो अबाउट द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. सो स्टिग्मा जो होता है ये होता है रिसेप्टिव स्पॉट, जहां पर पॉलन ग्रेन आके लॉन्च करता है एंड यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. So this is the receptive spot which accepts pollen. Style is a long cylinder part between the ovary and stigma, and ovary is the basal swollen part. As you can see, this is so thin, and इसके बाद ये swollen ovary. This is elongated and circular in shape. So ovary के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल which gives rise to eggs, basically embryo sac. हम फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इसका डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर गायनोशियम. सो ये थे फ्लावर के 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. कैलिक्स एंड कोरोला सबसे बाहर वाले फ्लोरल होल्स होते हैं. सबसे पहले कैलिक्स आता है, देन उसके अंदर कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम. एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड दे आर फर्टाइल. एंड जो कैलिक्स एंड कोरोला दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, दे आर स्टेराइल. So with this we complete the parts of a flower. Now functions of a flower. Flower के functions क्या होते हैं? They are the sites for sexual reproduction. That is कि इनके अंदर जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, एंड जो फीमेल पार्ट होता है कार्पेल, उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, इट गिव राइज टू एग. सो ये दोनों फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं एंड फाइनली अ प्लांट इज फॉर्म्ड. सो दीज आर द साइट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने प्लांट किंगडम के अंदर 5 फाइलम्स पढ़े थे, दैट वर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. Out of these 5, only angiosperms are those plants which have flowers, which bear flowers. So flowers के through flowering plants, that is angiosperms के अंदर sexual reproduction होती है. इसका second function है, it helps in dispersal of seeds. Flowers seeds dispersal में help करते हैं. And the third function, it produces fruit. Indirectly we can say this, like when flowers mature, तो ovary develops into fruits and ovule develops into seed. So these are the functions of a flower: sexual reproduction, dispersal of seeds and the formation of fruit.